ઓબેસિટીથી બધાએ લોકો પીડાય છે અને આ જાડું પણ ઓછું કરવા માટે ઘણા બધા યત્નો કરે. લાઇપોસેક્શન, બારિએટિક સર્જરી, પછી ફાસ્ટિંગ કરે ને ભૂખા મરીને પડી જાય તોય વજન ઘટતું નથી. આના માટે શું કરવાનું? પ્રાણાયામ તો છે જ, પણ એની સાથે આજે 12 અભ્યાસ બતાવીશ. અને આ 12 અભ્યાસોથી હાથ, પગ, પીઠ, થાઈ, બટક, હિપ્સ બધા આખું શરીર પાતળું થઈ જાય. ઊંડા શ્વાસ ભરવાથી, કપાલભાતીથી, અને થાઇરોઇડની પ્રોબ્લેમ હોય તો ઉજ્જાઈથી, એનાથી વજન ઉતરે. સર્વાંગાસન, હલાસન, મત્સ્યાસન, સિંહાસન, એનાથી વજન ઉતરે. અને એની સાથે સાથે અભ્યાસ કરવા પડે. અને આમાં સૌથી પહેલાં અભ્યાસો બેસીને, પછી ઊંધા સૂઈને, સીધા સૂઈને, પછી ઊભા થઈને જેટલા જેનાથી થાય કરી લેજો. 10, 12, 15 અભ્યાસો કરી લેજો અને જેવું તમે ગમતું હોય ને એવું શરીર તમે પામી શકો છો. એના માટે થેરાપીઓ પણ છે. અહીંયા આ જુઓ, આ ભાઈની થઈ રહી છે સ્ટીમ થેરાપી. એમાં પાછળ પ્રેશર કુકર મૂકેલા છે અને એમાંથી સ્ટીમ આવે અને આખા શરીરમાં લાગે. આમ ગ્રીન હાઉસ થર્મોલિયમ થેરાપી અમે કરીએ છીએ. ઉપર પન્ની લપેટીને અને અંદર પરસેવો આવે, પછી મસાજ કરવામાં આવે, પછી સ્ટીમ આપવામાં આવે, પછી યોગ કરવામાં આવે, પછી ઉપવાસ કરવામાં આવે. આ બધું કરીને અમે વજન ઘટાડીએ છીએ. પછી આ ડ્રાય મસાજ છે. મસાજ આમ 10 જાતની હોય. એમાં સામાન્ય તેલથી મસાજ હોય, ફિર મેડિકેટેડ મસાજ હોય, પિત્તપંડ મસાજ હોય, સ્નેહધારા મસાજ હોય, પોટલી મસાજ હોય, પછી જેલથી મસાજ હોય, પછી આ ડ્રાય મસાજ હોય, અને માટીમાં મડ સ્નાન કરીમાં એમાં આપણે મસાજ કરવાની હોય. કેવી રીતે પણ આ મસાજ છે ને આ બહુ જોરદાર છે. આ વજન ઘટાડવા માટે, આર્થરાઇટિસ મટાડવા માટે, શરીરને રિલેક્સ કરવા માટે તો આ ડ્રાય મસાજ છે. અને અંતે આ બસ્તી છે. આ જે બસ્તી છે ને, આ માણસે એક બાજુમાં આમ ડાબી બાજુમાં કરવટ લઈ લે અને પાછળથી એમાં ગોધન, અર્ક અને દશમૂલ, ત્રિફળા, દશમૂલ, ગોધન, અર્ક એ નાખીને બસ્તી આપવામાં આવે. એક જ દિવસમાં અડધું કિલો વજન ઉતરી જાય. આવી છે આ બસ્તી. તો આ બસ્તી એમાં ટીવીની મર્યાદાના પ્રમાણે તમને આ થોડુંક નાનકડું બતાવ્યું છે, પણ આ બધું. અને અહીંયા જુઓ, આ ચા તૈયાર થઈ રહી છે. દાળચીની, તજ અને અશ્વગંધાના પાંદડા. અશ્વગંધાના જે પાંદડા હોય એ વજન ઘટાડે, અને અશ્વગંધા જેની રૂટ હોય ને એનાથી વજન ઓછું થાય. અશ્વગંધાનો પાવડર, અશ્વગંધા રિસ્ટ, જેનું વજન ઓછું હોય ને એને અમે પીલાવીએ છીએ. આ જુઓ, વાતો નાનકડી છે પણ એની મહિમા બહુ મોટી છે. તો આ તો અશ્વગંધાના પાંદડા ત્રણ સવારે, બપોર, સાંજે. જેને બહુ જાડા છે, જેનામાં અમારા જે સનીભાઈ છે ને, સની સિંહ, એનો 132 કિલો વજન થઈ ગયું છે. ए छोकरा सनी, तुम 5 पत्ते खाना अश्वगंधा के, इसी की चाय पी लेना दालचीनी के साथ, और थोड़ा अर्जुन की छाल भी डाल लेना, अंदर से भी बॉडी क्लीन कर देगा. और ये गोधन अर्क पीना. और गोधन अर्क स्वामी जी मैं पहले भी पीता हूँ. हाँ, ये पूरी बॉडी को अंदर से क्लीन कर देता है. कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, आर्थराइटिस के लिए, पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए सबसे बड़ी 2 चीज़ें, 2 वस्तुओं છે. एक गोखरू છે અને આ ગોધન અર્ક છે. બહુ જબરદસ્ત. तो अश्वगंधा के पत्ते 5 सुबह, दोपहर, शाम 3 बार पीना. एक बार चाय पी लेना उबाल करके. उसके और उसके जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं, कंपोनेंट, वो और आ जाएंगे. और रोज नियम से 5 से 8 मेरे साथ योग किया कर सुबह. ठीक है सर. तेरे को 123 से सीधा 70 पर लाना है. क्या करता है बेटा? सर मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ स्वामी जी. આ છોકરો અમારા હરદ્વારનો છે. हाँ जी. प्रॉपर्टी वधी कि नहीं वधी, एनी प्रॉपर्टी वधी. और स्वामी जी मेरे माता पिता जो हैं वो दोनों आए थे आपके पास, और 1 तारीख को ही गए हैं वो यहाँ से. उन्होंने मुझे 2 तारीख को कहा कि स्वामी जी ने आह्वान कराया, जो आना चाहते हैं कि आओ, और उन्होंने मुझे जबरदस्ती भेजा. ठीक किया. और मुझे ये नहीं बताया कि आप डाइट में क्या देंगे. वो ठीक किया, क्योंकि बच्चे जो है
खाने पीने के चक्कर में डर जाते हैं। और यहाँ करके अब कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लगा भाई, यहाँ करके डाइट ऐसा लगता है यही खाना चाहिए। बहुत अच्छा। पहले खाने की इच्छा होती है और यहाँ करके अरे बोले ना खाओ तो इसको निकालना करना, इससे अच्छा ना खाओ और अपना घटाते जाओ। हाँ? कितना कम हो गया? 5 किलो हो गया स्वामी जी 4 दिन में। 4 दिन में 5 किलो। अब ये खुश है। माता पिता को क्या था? सर स्वामी जी माता पिता मेरे आपके बहुत टाइम से योग कर रहे हैं। मेरी मदर को निपल्स वगैरह में पस आती थी। ओ हो और वो हमेशा मुझे ये कहती हैं कि अगर हम योग ना कर रहे होते आज तेरे माता पिता तेरे साथ ना होते। क्या बात। तो वो आपको भगवान की तरह पूछते हैं। और स्वामी जी मेरे पापा हमेशा कहते हैं जैसे भगवान राम को लोगों ने तब नहीं पहचाना वैसे ही लोग आपको नहीं और खासकर हरिद्वार के लोग आपको नहीं पहचान रहे। बाहर के लोग आपको पहचानते हैं, योग करते हैं सब कुछ, लेकिन हरिद्वार वाले सोचते हैं कुछ नहीं है। कम पहचानते हाँ जी सर। हैं। लेकिन देखो एक बात बताता हूँ, वैसे हरिद्वार में मैं किसी अपनी बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूँ इस बात को, जितने भी हरिद्वार के लोग हैं ज़्यादातर बाबाओं के बारे में क्या था, भंडारे खाते हैं। मेरे बारे में ये तो कोई नहीं कह सकते कि बाबा भंडारा खाता है। नहीं स्वामी जी, हमने तो आपसे योगा तब से करी, मैंने आपको बताया 98 में मैं आपके शिविर में गया था जब आपने खुद योगा करी। और स्वामी बालकिशन जी वो तब दवाई अपने हाथ से देते थे। तो आपने एक बात तो है, मतलब थोड़ा बहुत तो ऊंचे नीचे होते हैं, लेकिन जो बाबाओं की इमेज थी, भंडारा खाते रहते हैं, पड़े रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं, दान का पैसा खाते रहते हैं, और वो इमेज हमने चेंज की है। हरिद्वार के लोग ये तो मानते हैं भाई हरिद्वार का नाम दुनिया में स्वामी रामदेव ने। और मुझे माता पिता ने यहाँ भेज के, मेरा छोटा बेटा है 1 साल का 3 साल का, उसके लिए आपका गुरुकुल का फॉर्म भर दिया है पीछे से कि उसे हरिद्वार गुरुकुल में एडमिशन। ये बात हाँ, इसने का जो कहने का मतलब है सनी का कि जितना मानना चाहिए उतना नहीं मानते। अरे वो ठीक है बाबा जी कर रहे हैं, ठीक है दुनिया आ रही है, अपन ठीक है जैसे है। लेकिन हरिद्वार वाले अभी शिविर में आने लग गए, यहाँ हरिद्वार वाले यहाँ आने लग गए। हाँ आने लग गए, नहीं तो पहले शिविर में तो आते थे। अभी मैंने बहुत दिन से वो जो ओपन शिविर हुआ करते थे वो नहीं किया, फिर करेंगे तो फिर आएंगे, करना पड़ेगा। स्वामी जी मैं जब RT-PCR कराने गया, मैं आपको थोड़ी सी और बात बताऊं, लोग इतने परेशान हैं। एक बंदा मुंबई से आ रखा था और वो मुझे कह रहा था मैं 4 घंटे बाहर खड़ा होकर गया हूँ योगाग्राम, उसके बाद RT-PCR रिपोर्ट होगी, उसके 10 साल के बेटे को कैंसर था। तो मैंने अपने फादर को कॉल की, मैंने कहा आप योगाग्राम में हो, जितनी हेल्प हो सके कराओ। तो मैं ये थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जगह बढ़ाई जाए, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। दिक्कत है। अब बेटा 1000 की 1100 की व्यवस्था कर दी अभी। हाँ जी 1100 की, शुरू में यहाँ 200-250 थी, बढ़ा करके ये चारों तरफ यहाँ जंगल था, कुछ नहीं था। देखो मैं एक बात बताता हूँ, योग कर लो, चल बेटा। जब हम यहाँ आए थे चारों तरफ जंगल, और यहाँ लोग हिरण, कबूतर, सुअर ये मार के खाते थे। जी मैंने भी ये देखा था, 12 साल पहले मैं आया था, ये तालाब था और जहाँ पंचकर्मा होता है वहाँ थोड़ा सा योगा का सेंटर था और थोड़ी सी हट्स बनी हुई थी। आपने बिल्कुल यहाँ का कायाकल्प कर दिया स्वामी जी, बिल्कुल। यहाँ पिछले 11-12 सालों में हमने करीब जो है टोटल इन्वेस्टमेंट देखो ना, तो प्रॉपर्टी वाला है। हाँ बता इसकी कीमत बता दे कितनी है। स्वामी जी इसकी अमूल्य कीमत है, इसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। कोई सेल आउट नहीं कर रहे, नॉट फॉर सेल। लेकिन कम से कम ये जगह और यहाँ जो भी यहाँ संसाधन और सारी चीज़ें खर्च हुई हैं, करीब हमने लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ 100 करोड़ खर्च किए हैं, और केवल जन कल्याण के लिए। अब और बढ़ा देंगे बेटा, अब 2000 का पतंजलि योगपीठ तैयार हो रहा है, 2000 वहाँ आएंगे, और मैं कुछ दिन वहाँ कुछ दिन यहाँ, दोनों जगह संभालूंगा। हाँ मजबूत हूँ, थकता नहीं हूँ कभी भी। कितनी उम्र होगी बेटा? सर स्वामी जी 34। बस ठीक है, तो बालक था तब आ गए थे हमारे द्वार। हाँ जी, तब मैं बहुत छोटा था, तब आपने बच्चों को बिठा के कराया था। अपने कनखल वाले अच्छा ये बच्चों वाले में आया हुआ है। ठीक है बेटे, चलो आगे पीछे करो। अगले इस बहन को देना। महाराष्ट्र नासिक से हूँ। आपके फॉलोअर मेरे पेरेंट्स थे, वो हाथ प्रोडक्ट आपका ही कहते थे। अच्छा। कि हमेशा आपका ही यूज़ करना चाहिए, और वो स्वयं सेवक रह चुके हैं और हर चीज़ स्वदेशी चाहते थे। तो वही थोड़े से जीन्स हम लोग में आए हुए हैं। और मैं खास करके, मेरे पति को पार्किंसन है इसलिए मैं आई हूँ उनके साथ में, और मेरा भी थोड़ा ये है थायराइड और प्री डायबिटिक आया है,
और मुझे एक सांस यहाँ पर हड्डी थोड़ी बड़ी हुई है, उसमें सांस लेने में दिक्कत होती है। पर 5 दिन के अंदर मेरा 3 किलो वजन कम हो गया है और साथ में मुझे जो खाने को कम मिल रहा था पर उसमें यहाँ बहुत आनंद आ रहा है। मुझे अब यही लगता है कि घर का खाने से ज़्यादा यही खाना उत्तम है। अब ये घर में यही करना, अब चेंज कर लेना सब। जी, बहुत आशीर्वाद। संस्कार ઘરથી જ મળ્યા હતા કે યોગ આયુર્વેદ સ્વદેશીનો આ સનાતન સંસ્કૃતિનું જીવન એ જ જીવન છે। और मेरे पति को 8 साल से पार्किंसन है। सब लोगों ने, न्यूरोलॉजिस्ट ने कहा कि एलोपैथिक दवा लो, पर हम सब ने विरोध किया, उन्होंने माना और आखिरी में हम यहाँ पर हम आए और हमें पूर्ण उम्मीद है कि अच्छे होके जाएंगे। चलो, पेट वेट कम हुआ तो इससे फील गुड भी हो रहा है थोड़ा सा। और सबसे बड़ी बात, कभी मैंने ऐसे किसी स्वामी जी से या किसी साध्वी से कभी ऐसे बात नहीं की, तो मतलब आपकी सहजता और सरलता वो मुझे मतलब बहुत अच्छी लगी कि हम आपसे बात भी कर पा रहे हैं, आपको देख भी पा रहे हैं। तो ये आपकी महानता है, आपका जो योग है वो धन्य है, आप भी धन्य हैं। ऐसे ही उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। अब तो वैसे ही ठीक है। अब अगले को दे दे, ये थोड़ा बेडोल था, ये मोटा मोटा हो गया था। कितना था भाई? प्रणाम, मैं अरुण सोनी ग्वालियर से। मेरी पत्नी के कारण मैं यहाँ आया हूँ। उसको पैर से लेके कूल्हे तक की एक पैर पूरा जाम रहता था, चलने में बड़ी दिक्कत आती थी। उसके बार बार आग्रह से मैं भी आया हूँ। मेरी भी शुगर ठीक हो गई, कोलेस्ट्रॉल ठीक हो गया है और वजन भी कम हो गया है। मैंने 10 दिन में 9 किलो वजन कम कर दिया गुरुजी। तो ये तो अच्छा किया ना। सब जी। पत्नी की बात माना करो। जी जी। सब कहते हैं पति परमेश्वर होता है। स्वामी रामदेव कहता है पत्नी परमेश्वरी होती है। मैं पत्नियों की, माताओं की, महिलाओं की बहुत बड़ाई करता हूँ, क्योंकि सब कहते पुरुष प्रधान समाज है। मैंने कहा पुरुष आए कहाँ से? माँ से ही तो पैदा हुए सारे। ओम स्वामी जी, ओ। मैं पुष्पा कल परसों के दिन भी आई थी। मैंने घर पे भी वेट कम किया है और मैं यहाँ इसलिए आई हूँ। मैं तो आपको 2009 से फॉलो करती हूँ, योग टीचर भी हूँ, पर घर पे बच्चे नहीं सुनते तो मेरे बेटे को लेकर आई हूँ उसका चश्मा निकालने भी, और उसके मन में आस्था जगे योगा के लिए और वो आगे की लाइफ में मतलब योगा को समझे। कहाँ तेरा बेटा? वो उधर ही है, उधर ही स्पीच थेरेपी के लिए। चलिए मैंने अगले को दे दो। बच्चों को एक बार यहाँ ले आएंगे तो अपने आप ही ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ओम स्वामी जी, जी। मैं समता, मैं जयपुर से आई हूँ। मैंने 5 दिन में 4 kg वजन कम किया है और मेरे ये लेफ्ट घुटने में दर्द रहता था, ये ज़्यादा देर नहीं मोड़ पाती थी। अभी 5 दिन में अब मैं दर्द भी भूल गई हूँ। दर्द भूल गई कि कहाँ था? और आपको देखना स्वामी जी, मेरा 10 साल से सपना था कि सिर्फ आपको देख पाऊँ। और ये शायद हर का होगा स्वामी जी जो आपको फॉलो करते हैं। ओम स्वामी जी, मैंने 2014 में मुझे यूट्रस ओवरी में सिस्ट हो गया था तो रिमूव करना पड़ा था। और जैसे ही मैंने रिमूव मतलब कराया, इसके दूसरे दिन से मुझे यूरिन इन्फेक्शन का ज़बरदस्त दिक्कत प्रॉब्लम होने लगी। और फिर मैं 2015 में यहाँ पर आई थी आपके पास में। अच्छा। जी सर। और फिर इसके बाद में मैंने जो है रेगुलर योगा किया और अब जा करके फिर योगा सेंटर अपने घर पे ही बनाया। और हमारे हस्बैंड जो हैं सुबह डेली 5 से 6:30 तक योगा कराते हैं। शाम को मैं कराती हूँ और सुबह वो कराते हैं। घर को ही योग मैं बना रखा है, क्या बात है। ये तो पुरानी शिष्य है। जी सर। पर सर तो इसके बाद में जब आप अभी डॉक्टर अनुराग जी के साथ में जब कैंप लगा था ये मोटापा घटाने का, हाँ। मैं भी उसको देख देख करके करती रहती थी। हाँ, और हमारे साइंटिस्ट भी मोटे मोटे हो गए थे। मैंने कहा तुम पतले हो, पहले सबको लगा दिए। फिर उन्हीं के साथ मैंने योगा किया और 19 kg मैंने घर पे ख़त्म किया। क्या बात। और अब मैं यहाँ पर आई हूँ। थोड़ा सा आर्थराइटिस, ये चूँकि यूट्रस ओवरी रिमूव हो गया है तो मुझे उसका आइडिया नहीं था कि कैल्शियम और विटामिन डी की। जी सर। तो इसके बाद में जो है अब उसी के लिए मैं आई हूँ कि मेरा आर्थराइटिस प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाए। और इसके बाद फिर जब मैंने यूरिन इन्फेक्शन की दवा जब एलोपैथिक की ली तो मुझे शुगर हो गया, बीपी हो गया, आँख में ब्लड भी आ गया।
बहुत ज़बरदस्त दिक्कत। फिर डॉक्टर बोले कि आप जो है आप बिल्कुल नहीं ठीक हो सकती, आपको बीपी की भी दवा लेंगे और वो उसकी शुगर की भी लेनी पड़ेगी। लेकिन जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने पर्चा दिया, फाड़ वहीं पे फेंक दिया और मैंने एक भी टिकिया एलोपैथिक की नहीं ली, नहीं खाई बस केवल मधुनाशिनी और ये लेती रही। तब आपका ये मधु ग्रिड नहीं जानती थी मैं, बाद में आया था। और मेरा यूरिन में भी शुगर हो गया था 1% और HB1C जो था वो 8 हो गया था। फिर मैंने मधुनाशिनी से ही पूरा उसको डाउन किया और आज मेरा जो है केवल फास्टिंग 119 है। क्या बात है। और बीपी 130 45 ऐसा रहता है। कोई दिक्कत, मेरा 110 और 70 रहता है। योग करोगे पूरा सब नॉर्मल। इसने पूजा ने तो और ही कमाल कर दिया। इसने तो अब उसने बीपी शुगर आंख सब पूरा सही ठीक कर लिया, नहीं तो बर्बाद कर देते अभी तक। सारी जिंदगी की सेविंग स्वास्थ्य सारा जीवन ही तबाह कर देते हैं। जुड़ी हैं स्वामी जी। और 2008 में यहाँ पे आई थी, तब मुझे सबने बोला स्वामी जी नहीं मिलेंगे। मैंने बोला मुझे मिलेंगे, मैं सच्चे मन से आई हूँ और मुझे मिले भी। आपको माला भी मिली स्वामी जी तब से। और मुझे बहुत बीमारियाँ आई थी स्वामी जी। स्लीप एपनिया था, एसिडिटी थी, नींद नहीं आती थी और मोटी भी थी। मोटी भी थी मोटी भी थी। और मैं पूरी रात स्वामी जी मैं सो नहीं पाती थी एसिडिटी की वजह से। इतनी एसिडिटी हाँ, थी? मैं बैठ के रहती थी, अनुलोम विलोम कपालभाति पूरी रात पर करती थी स्वामी जी में। बहुत एसिडिटी रही थी। मुझे एलोपैथी की बहुत मेडिसिन दी थी, मैंने नहीं ली। मुझे वो हजम ही नहीं होती, मुझे उल्टी आती है लेने के बाद। उससे मुझे बाद में मेरी डायबिटीज़ बढ़ गई टाइप 2। तो मैं डॉक्टर के पास गई, उधर भी डॉक्टर बोले कि आपको पूरे ज़िंदगी पर ये मेडिसिन लेना पड़ेगा। मैंने बोला डॉक्टर सॉरी मैं नहीं ले सकती हूँ। एक डॉक्टर ने मेरे आँख के डॉक्टर को लेटर दिया, क्योंकि ये एलोपैथिक की मेडिसिन नहीं लेती है। तो उसने मेरा ECG किया और मैं लेटर दिया आँख के डॉक्टर के। आँख के डॉक्टर ने बोला तुझे लेना ही पड़ेगा। मैंने बोला नहीं मैं नहीं लूँगी। मैंने डायबिटीज़ मधुनाशिनी लिया, मधुकल्प था स्वामी जी तब। मधुकल्प लिया मैंने, मधुकल्प वटी। और मैंने खीरा करेला टमाटर और जूस पिया। उसमें नीम के पत्ते और सदाबहार के पत्ते डाल के मैंने जूस लिया। उसी से मैंने थोड़ा थोड़ा कम किया। 275 आया। बाद में मैं पुणे में गई चलाराम हॉस्पिटल में। उधर भी मेरे को डॉक्टर ने बोला तुझे पूरी ज़िंदगी औषधि खानी ही पड़ेगी। मुझे 1 महीने की 5,000 रुपये की खर्चा के दिया ये मेडिसिन। मैंने लिया भी डॉक्टर को खुश करने के लिए, लेकिन खाया नहीं स्वामी जी। मैंने ला के डस्टबिन में फेंका, खाया नहीं मैंने बोला उसे डॉक्टर को बोला मैं चैलेंज करती हूँ बिना ये दवाई के मैं मेरी डायबिटीज़ ठीक करूँगी। और मैं किया स्वामी जी। अभी मेरा डायबिटीज़ 145 है। पूरा ही ठीक रहेगा। जो थोड़ा बहुत किडनी का बचा उसको ठीक कर दे। हाँ। अब वाटर थेरेपी मेरा और एक स्वामी जी मेरा ये किया डॉक्टर ने, किडनी चेक किया, मेरा क्रेटिनिन 2 है। और फिर भी वो मुझे बोलता है कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि डायलिसिस के लिए तैयार हो ना, हो जाओ, फ्रूट मत खाओ, ये मत खाओ, कुछ मत खाओ। आपको रो फूड और फ्रूट्स ही खिलाएंगे। वही मैं खा रही हूँ। अभी 3 दिन हुआ और मुझे बहुत अच्छा फील रहा है। मतलब उल्टा पुल्टा उनको पता है नहीं, उल्टी गाइड करते, पता नहीं क्या बीमारी है। मैं इसलिए मैं कहता हूँ एलोपैथी खुद में ही एक बीमारी मैंने है। डॉक्टर से स्वामी जी ये भी कहा मेरे से जबरदस्ती मत करो, मैं भी जिद्दी हूँ, मैं नहीं लूंगी एलोपैथिक ये बाबा जी की पक्की शिष्या है। मैं भी जिद्दी। हाँ, मैं बाबा की पक्की शिष्या हूँ। और जब से मैं यहाँ आई स्वामी जी, मैंने सिर्फ उधर योग भवन और थोड़ी सी कुटिया देखी थी। अभी इतना ये हुआ है, स्वर्ग हुआ है स्वामी जी। रियली स्वर्ग किया आपने। आप तो हमारे भगवान है स्वामी जी। मैं बोलती हूँ आप तो हमारे भगवान हैं। भगवान तो है ईश्वर, आप तो हमारे सामने बैठे हैं गुरु जी, आप हमारे भगवान हैं। मैं तो हमेशा सबको बताऊँ, मैं योग प्राचार्य 2007 में मैं योग शिक्षा भी बनी हूँ। चलो अब इस बच्चे को देना, ये क्या करता है? हाँ, तुम किसके साथ आए हो? मम्मी पापा के साथ। और यहाँ के क्या क्या किया? सारी थेरेपी की। सारी थेरेपी की? क्या बात है। क्या नाम है आपका? प्रियांशु। प्रियांशु। तो क्या क्या थेरेपी की? मसाज किया? हाँ, मसाज किया। स्टीम लिया? हाँ।
और स्टीम, फेस स्टीम लिया और वो और बॉडी नसें भी स्टीम लिया, ली। हाँ वो, नाक में भी लिया, हाँ और एक्यूप्रेशर भी, हाँ एक्यूप्रेशर भी, और योग भी किया पूरा, हाँ यज्ञ किया। हाँ हाँ? ये हवन किया, हवन। हाँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा। रोज करोगे ना? हाँ अच्छे बच्चे, चलो भाई। हरिओम स्वामी जी। मैं संदीप खंडेलवाल, सीए संदीप खंडेलवाल, नासिक से हूँ। और बच्चा मैंने इसीलिए लेकर आया, उनका ऑनलाइन क्लास चल रही है, लेकिन स्टार्टिंग हम लोग बहुत लेट हो गए यहाँ आने को, 45 साल लग गए हमको आने को। तू अभी 13 साल में चल तो ये ठीक बोला जी कि हाँ। हम बहुत लेट आए तो पहले चल बाबा जी के पास। कुछ लोग मेरे से मिलते बोले समझा पहले मिल गए होते हैं ना तो हमारे बच्चे एक अलग लेवल पर होते। हमारे माँ बाप हमसे ना जाते, किसी की किसी चीज़ से, किसी की किसी छोटी छोटी बीमारियों से मौतें हो जाते हैं, लोग परेशान रहते हैं। और सभी चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है स्वामी जी, वो बहुत अच्छा ना, लगा अच्छा मुझे। बच्चा है। आपके सुबह 4 बजे के जो उठ के और योग करने से लेके तो पूरी थेरेपी से लेके सब में इंटरेस्ट ले रहा है। खाना मैं भी देख इसको रहा हूँ पसंद आ रहा है। खाना भी पसंद आ रहा है। खाना हाँ बाकी घर में तो उल्टी बहुत इधर उधर की चीज़ें दुनिया में बहुत खाई जाती है, इसको लगता है ये भी टेस्ट करो, ये भी कोई एक दुनिया है। बिल्कुल, हाँ? फ्रूट चलो। से लेके सब अच्छा एंजॉय कर रहा है वो। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, धन्यवाद स्वामी जी। इसके तो मुंह काटने के लिए बोल दिया था, इसकी तो जीभ। ए तेरी जीभ कटने से बच गई बंसल। ओम स्वामी जी। हम्म। सर मेरी डायबिटीज़ यानी फास्टिंग 224 आ रही थी। हाँ। और यहाँ अभी मैंने रैंडम डायबिटीज़ करी है, वो 120 ही आई है जी। 120। और मैंने जो पहले गोलियाँ खा रहा एलोपैथिक की खा रहा था शुगर की, वो सब बंद कर रखी हैं। और मेरी जीभ में एक इतनी लंबी सी सिस्ट निकली थी, वो यहाँ आके बिल्कुल कम, मतलब अभी 10% केवल रह गई है। ये शुद्धिकरण का प्रभाव है जीभ में। डॉक्टर बोले लटक जाएगा। कैंसर भी हो सकता है, नहीं तो ऑपरेशन करके निकालनी पड़ेगी। जीभ काटनी पड़े ना तो आदमी डरता है। ये सोचा जीभ काटने से अच्छा बाबा के पास चला जाता। और 5.5 किलो वजन मेरा कम हो गया जी। कहाँ से आए राजीव भाई? एटा से। एटा से आए। ये 99 नंबर की टोपी क्यों पहन रखी है? ये आजकल ना अलग अलग वो फैशन है। स्वामी जी ओम। ओम जी। मैं आपकी उम्र कितनी है? मेरी 78 ईयर चल ना, ये 68 ईयर चल रहा है सर, दिसंबर से। सर मैं हाँ तो 70 के भी होना, कोई अब हो जाएंगे 2 साल बाद। मैं फौज से प्रीमैच्योर रिटायर कर दिया गया था। मेरे को बीमारी के कारण मेरा एक्सीडेंट हो गया था। हो। उसके कारण मैं वहाँ डॉक्टर उनको रिक्वेस्ट किया अपने कमांडेंट को कि सर मेरे को सर्विस करनी है। वो बोले नहीं, आपको आपकी बीमारी के कारण आप फौज के योग्य नहीं है, जाना पड़ेगा। उन्होंने मेरे को भेज दिया 22.5 साल में सर। मैं सूबेदार था। वहाँ से आने के बाद घर में 3 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। बड़ी बेटी कॉलेज में थी, बेटा स्कूल में था, और उससे छोटी बेटी भी स्कूल में थी। अभी मेरे को बड़ा मुश्किल लगा। फिर मैं आर्य समाज में चला गया। आर्य समाज में जाने के बाद वहाँ उन्होंने बताया कि भाई आप यज्ञ वगैरह करो। यज्ञ करने लगे स्वामी जी। फिर 2005 में आपसे जुड़ गए। आपने रोहतक शिविर लिया था, वहाँ से आपने बोला था कि मैं योग शिक्षक बनाऊंगा। तभी मैंने प्रण कर लिया कि मैं आपका योग शिक्षक बनूंगा। और तब से आपके पहले और दूसरे कोर्स में मैं आपका योग शिक्षक बना। और मेरी अभी वो जो फौज से मैं जिन बीमारियों से आया था, आज मेरी वे सारी की सारी बीमारियां मेरे पास नहीं हैं। और मेरा सारा परिवार, मेरे बच्चे बड़े अच्छे सेटल हो गए हैं। बड़ी बेटी IIT M.Tech कंप्यूटर से अभी करोड़ों का पैकेज है उसका, अमेरिका में है। पहले निराश हो गया था कि जीवन में अंधेरा ही अंधेरा आ गया, तो बीच में धके दिया इन्होंने। अब योग से नई दृष्टि मिल गई महर्षि दयानंद और आर्य समाज की शरण में आके। ठीक है साहब, क्या नाम है? ये स्वामी जी, मैं ये समझता हूँ केवल योग और यज्ञ की वजह से मेरे को ये चीजें मिली हुई है। क्या नाम है आपका? मैं सूबेदार श्री भगवान आर्या। चलो बहुत जोरदार अभिनंदन है। श्री कर्नल भगवान ओपी गुड़िया को आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं उनका भतीजा हूँ। अच्छा। उनका तो बालक अपना पूरा दिल्ली का संगठन देख रहा है। हाँ जी, डॉक्टर परविंदर मेरे कजन है। मैं अभी अपनी मिसेज को लेकर आया हूँ। वो थोड़ा हैवी वेट हो गई थी और घुटनों वगैरह में दर्द है। अभी उनको काफ़ी आराम है। और स्वामी जी यहाँ मेरे को चौथा दिन है
और मैंने भी अपना वजन कम किया है। मैं आप सबके बहुत बहुत आभारी हूँ स्वामी जी, और आपसे जुड़ के मेरे को और मेरे परिवार को बहुत कुछ मिला है। ओम स्वामी जी નમસ્તે નમસ્તે. તો આવી રીતે આ તો યોગની વાત થઈ. થોડાક અભ્યાસો કરી લો, જેનાથી થાય સૂર્ય નમસ્કાર કરી લો, દોડી લો, જે થાય તાડાસન ત્રિરેક તાડાસન કરી લો. આવી રીતે જે યોગ કરશે એ સદાય નિરોગ. રાત્રે 8:30 વાગે હું તો બોલીશમાં મોટો ખુલાસો. સોદાગર કોણ?